So hello students, how are you all? So today we are back with another class of sound. In last class we already discussed that how sound propagate from one end to another. I told you whenever the sound propagate, it's actually vibrate the molecules present in the air. That is how the sound propagate from one point to another point. That is okay. If you didn't watch that video, please watch that video first, then come to this video. Alright, so today we will learn that what should be the mathematical values or the mathematical formulas which affecting the velocity of sound. So we are going to prove V equal to F lambda and several other formulas for this. Alright, so without any delay, let's start. Alright, so we are in our blackboard right now. In here, today we will have to learn that what is the waveform. सपोज एक बात पूरा ध्यान से सोचो, एक स्टिल वाटर है तुम्हारे पास. Whenever you will drop a stone in that still water, what will happen? स्टोन जब गिरेगा उसके साथ वाटर में एक वेव क्रिएट होगा एंड दैट वेव इज लुक लाइक दिस. वो प्रोपगेट करते रहेगा एंड until it will disappear. So that is the format. It will create such wave like this. So sound wave is also that kind of sinusoidal wave. Okay, so let me draw a sound wave over here along x and y axis. So this is my y, this is my x axis. Now I'm going to draw the sound wave over here. So it will look like this. This is the graphical representation of the sound wave. Now why this will represent like this? देखो बहुत डीपली समझना. लास्ट क्लास में मैंने बताया था वेन एवर द पार्टिकल विल वाइब्रेट फॉर वन कंप्लीट ऑक्सिलेशन. क्या करता है पार्टिकल? सपोज पार्टिकल यहां से अगर जर्नी शुरू करेगा, सो इट विल मूव एट द टॉप, देन इट विल कम टू सेम अमाउंट एट द बॉटम, अगेन इट विल मूव टू इट्स रेस्ट पोजीशन, मतलब जहां से स्टार्ट किया था, द इनिशियल पॉइंट. सो वेन एवर दिस टोटल जर्नी, पहले अप, फिर टोटल डाउन, फिर अप जहां से स्टार्ट किया था. सो वेन एवर दिस टोटल जर्नी विल कंप्लीट इट इज कॉल्ड वन ऑक्सिलेशन and the time taken for it is known as one time period. We already discussed about it in our previous video. Now in this case, this thing is represented by this graph. तुम बोलोगे सर कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? Let me show you. Suppose तुम पकड़ के चलो, this is the zero position. Let me change the color. This is the zero position, and whenever at the top position this is positive 1 and the bottommost position is negative 1. And also whenever you will plot this one, तो प्लॉटिंग में तुम्हारा पॉइंट्स कहां पर होगा ध्यान से देखो. पहले t इक्वल टू 0 में, first of all let me discuss that this x axis denoting the time t and y axis denoting the amplitude, which is nothing but the distance from its rest position. Okay, so whenever the at t equal to 0, we can see that the object is still at 0 position. तो ठीक है, यहां पर पॉइंट होगा तब 0 पॉइंट में. उसके बाद at the t equal to some time later, मैं पकड़ रहा हूं t equal to only t over here. So वो कहां पर गया? That is at positive 1 point. तो सपोज मैं ये वाला positive 1 पकड़ रहा हूं, so it will be positive 1 point. The point should be here. देखो ध्यान से सोचो, पहले 0 से स्टार्ट किए, जब टाइम बीत गया, नाउ टाइम इज मूविंग राइट, तो टाइम के हिसाब से तुम्हें भी तो along x axis मूव करना पड़ेगा. So whenever after certain time you can see that the particle is in positive 1 position. So as I did over here, particle is in positive 1 position. Okay, now after this again it will come back to the initial position after some time. So that will be 0 again. So t देखो t बढ़ता ही जा रहा है, time is actually going on but the place is changing. पहले 0 में था, फिर मैक्सिमम में गया, फिर 0 में आया. उसके बाद क्या होगा? It will come back to the negative 1 after certain time. तो देखो अभी नेगेटिव में आ गया.
एंड फाइनली वो जब कंप्लीट करेगा वन ऑक्सीलेशन इट विल गोज बैक टू द जीरो और द इनिशियल पोजीशन। तो हम लोग जानते हैं इन दिस टोटल जर्नी द टाइम टेकन दैट इज कैपिटल टी विच इज टाइम पीरियड। तो ये वाला टोटल जर्नी में तुम्हें जो टाइम लगा दैट इज टाइम पीरियड। एंड यू कैन सी दिस इज अ कंप्लीट ऑक्सीलेशन ग्राफ। Okay, one more thing that you need to learn, that is the wavelength and amplitude also. Wavelength. Whenever you will complete one oscillation, for that complete wave, the total length along that x-axis will be counted as wave length. मतलब wave का कितना length होगा, एक wave का कितना length होगा, that is the wavelength, simple as that. So in this case the wavelength will be lambda। मतलब देखो यहां से यहां तक द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव, ये जो वेव यहां पर ड्रॉ किया हूं दिस इज कंप्लीट वेव, तो इसका वेव लेंथ हो गया लैम्डा। इट इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर लैम्डा। ओके, one more thing, as I told you, the amplitude. What is amplitude? Whenever the particle will move on along y-axis from its initial position, देखो यहाँ पर पार्टिकल जीरो में था, उसके बाद आफ्टर सर्टेन टाइम इनिशियल पोजीशन से ऊपर गया पॉजिटिव वन तक, सो दैट इज द एम्पलीट्यूड। द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो इन ग्राफिकल नेचर हाउ यू कैन शो दैट, यहां पर देखो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हुआ यहां से वन तक, सो दिस इज योर एम्पलीट्यूड ए। फिर से एक बात सुन लो, चलो डिस्कशन टाइम में जाते हैं। सो हम लोग अभी क्या किए, वी जस्ट लर्न अबाउट द वेव, व्हाट इज अ कंप्लीट वेव और ऑक्सीलेशन अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकल नेचर। वेव का जितना लेंथ होगा अलोंग एक्स एक्सिस दैट विल बी द वेव लेंथ, मतलब एक कंप्लीट वेव का जो लेंथ होता है दैट इज नोन एज वेव लेंथ। अच्छा, वन मोर थिंग, whenever the wave will travel the maximum height from its initial position, मतलब पार्टिकल जब वाइब्रेट कर रहा है इनिशियल पोजीशन से जितना ऊपर जाएगा दैट विल बी योर एम्पलीट्यूड। एक बार पिक्चर में देख लो यहां पर, दिस पोजीशन विल बी योर एम्पलीट्यूड, मतलब वाई एक्सिस वाइज। और टोटल टाइम तो हम लोग जानते ही हैं, ये वाला टोटल कंप्लीट वेव करने के लिए जो टाइम लगेगा दैट विल बी टाइम पीरियड और टी। तो एक चीज ध्यान से सुनो, यहां पर मैंने एक कंप्लीट वेव का जर्नी दिखाया हूं वेयर द लेंथ इज लैम्डा। तो वेव को t इक्वल टू जीरो से, मतलब इनिशियल पॉइंट से t इक्वल टू कैपिटल टी तक ट्रैवल करने के लिए कितना लेंथ कवर करना पड़ा, दैट इज nothing but the lambda, the wavelength of itself। तो पहले lambda is the total displacement traveled by this one wave। okay, now कितना टाइम में ये lambda distance travel किया है, that is at time t, जिसमें टोटल कंप्लीट वेव होता है, the time period। so this is nothing but the form of displacement by time, which is, we know that it is nothing but the velocity। So we can write v equal to lambda by t, where lambda is the length covered by the wave or complete wave at one time period or unit time period। So that's it for the v। Right now we got already the idea of v over here, and that is nothing but v equal to lambda by t। okay, so we got v equal to lambda by t, just write it over here। अच्छा, नाउ कमिंग टू फ्रीक्वेंसी अगेन, लास्ट क्लास में बताया था फ्रीक्वेंसी क्या है। जो ये जो टोटल ऑक्सीलेशन किया एक वेव, फिर से दिखा रहा हूं, देखो रेस्ट पोजीशन है, इससे ऊपर गया एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक, फिर नीचे आया मिनिमम डिस्टेंस तक, फिर ऊपर गया कहां पर, जहां से स्टार्ट किया था। सो दिस इज अ कंप्लीट ऑक्सीलेशन, और वेव फॉर्म में भी इसको बोल सकते हो, एज आई जस्ट टोल्ड यू, ये वाला टोटल कंप्लीट वेव, ये वाला में जितना टाइम लगा दैट इज टोटली अ कंप्लीट वेव विद द टाइम पीरियड। अच्छा, सो इन दिस केस आई टोल्ड यू अबाउट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकेंड में
जितनी बार ये कंप्लीट वेव या फिर कंप्लीट ऑक्सीलेशन होता है, द नंबर इज द फ्रीक्वेंसी. सपोज सोच लो, ये वाला जो ऑब्जेक्ट था यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब एक ऑक्सीलेशन. फिर से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब 2 ऑक्सीलेशन हुआ अभी. तो मैं अज्यूम कर रहा हूं इन 1 सेकेंड देयर इज 2 ऑक्सीलेशन. सो यू कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी विल बी 2 हर्ट्ज. दैट्स इट. अगर तुम वेव नेचर के बारे में बात करोगे, सो इफ यू ऑब्जर्व दैट इन 1 सेकेंड इट इज क्रिएटिंग 2 कंप्लीट वेव्स. देखो 2 कंप्लीट वेव है यहां पर. If 1 second it is completing 2 complete waves, then it is having the frequency 2 hertz. मतलब frequency क्या है? 1 सेकेंड में जितना complete wave होगा. ओके, तो यूनिटरी मेथड से मैं लास्ट बार दिखाया था और एक बार दिखा रहा हूं. We know that time period, मतलब t सेकेंड में कितना complete wave होता है? एक complete wave होता है. So in t second we got 1 complete wave. तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 1 by t, just the unitary method. तो यही तो बना मेरा फ्रीक्वेंसी. मतलब 1 सेकेंड में जितना कंप्लीट वेव मुझे मिलेगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. सिंपल एज दैट. ओके, सो वी नो दैट f which is frequency equal to 1 by t. वही तो मुझे मिला है यहां पर अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड. तो देखो, इस दोनों इक्वेशन में एक सिमिलैरिटी है. इफ यू पुट दैट 1 by t वैल्यू एट द v पोजीशन, मतलब यहां पर v तो लिखोगे, लैम्डा अलग से लिखो और 1 by t को अलग से लिखो, तब जाकर समझ में आएगा कि यहां पर 1 by t के जगह तुम बिठा सकते हो दैट इज v इक्वल टू लैम्डा f, और f लैम्डा भी लिख सकते हो, सेम थिंग. So this is our master formula where we got the velocities depending upon the wavelength and also the frequency of the wave. So v equal to f lambda, very important formula over here. From here, if any of those two will be given, you can easily find out the third one. अच्छा, तो चलो थोड़ा यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं. नाउ व्हाट अबाउट द यूनिट्स? लैम्डा इज व्हाट? वेव लेंथ, मतलब एक कंप्लीट वेव का जितना लेंथ होता है. सो लेंथ दैट मीन्स मीटर, सिंपल. फ्रीक्वेंसी यहां से ही देख सकते हो, 1 by t, दैट मीन्स 1 by टाइम. तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा और 1 by सेकेंड हो जाएगा. या फिर यू कैन यूज हर्ट्ज, h z or hertz, that is the full form of hertz. All right, so this thing is over where we just learn about the velocity formula where v equal to f lambda. Now there are so many other formulas for the velocity, but remember that this is the most important formula. So first of all, what we have to do, देखो सेकेंड फॉर्मूला, ये सब मुझे प्रूफ करना नहीं है यहां पर. तुम लोगों का भी ये वाला प्रूफ नहीं आएगा अप टू क्लास 10, कॉज यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज, जिसमें ओनली प्रूफ जो आएगा दैट इज v इक्वल टू एफ लैम्डा का ही प्रूफ आएगा. ये वाला सब जस्ट रिमेंबर करना है, एंड व्हेन एवर द सम्स विल कम यू हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला जो अभी दिखा रहा हूं मैं. सो v इक्वल टू गामा p divided by the gamma p divided by d. Now what are this actually defined? देखो मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में, whenever the velocity of sound will differ that may causes by the medium. तो medium यहाँ पर एक major role play कर रहा है. If it is a solid medium, then velocity will be less. If it is a gaseous medium, the velocity is quite high. So in this case, whenever we will talk about any gaseous medium, the pressure, the volume, the temperature of that gaseous medium also affecting the velocity of sound. Here we are just pointing out two things, that is the pressure of the gas and also the density of the gas. So as you can see over here that P, in here P is the pressure of the gas and d in here that is the density of the gas. So you can see that velocity is directly proportional with p, under root of p obviously. So whenever the pressure will increase, the velocity must increases, and also the velocity is inversely proportional with the density. मतलब density जितना बढ़ेगा velocity उतना घटेगा.
सिंपल एज दैट. मैंने बोला ही था सॉलिड में डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी घट जाएगा. सो यू कैन ऑल्सो थिंक इट लाइक दैट. सो दिस टू आर द रिलेशन दैट इज गिवन टू यू. अच्छा, और एक चीज है गामा. नाउ व्हाट इज दिस गामा? This is the ratio of specific heat at constant temperature to the specific heat of the constant volume. Specific heat क्या है? For a particular object, to increase the temperature 1 degree Celsius, the heat needed is known as the specific heat. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री अगर इंक्रीज करना चाहते हो टेम्परेचर, सो दैट जितना हीट देना पड़ेगा, जितना हीट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट. तो स्पेसिफिक हीट, जब मैं गैसियस मीडियम के बारे में बात करूंगा फॉर द स्पेसिफिक हीट, देयर विल बी टू आउटकम. क्योंकि गैस डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? प्रेशर एंड वॉल्यूम के ऊपर. सो वेन एवर यू विल टॉक अबाउट द स्पेसिफिक हीट, तो एक बार तुम प्रेशर को कांस्टेंट पकड़ोगे, बोलोगे एट कांस्टेंट प्रेशर द स्पेसिफिक हीट विल बी दिस, और एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट पकड़ोगे और बोलोगे कांस्टेंट वॉल्यूम में स्पेसिफिक हीट ये है. मतलब गैस का दो स्पेसिफिक हीट होता है, एक फॉर कांस्टेंट प्रेशर, अनदर फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम. मैं ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, दिस विल नॉट कम इन योर एग्जाम. जस्ट रिमेंबर दैट गामा इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, दैट्स इट. ओके, सो one more thing that we need to learn for the velocity. ये तो गया मेरा gaseous medium का जो velocity का formula था. Now in the second part we will look for, एक मिनट, हाँ, तो in the second part we will look for the gaseous medium part. तो यहां पर देखो V इक्वल टू जो आएगा मेरा अंडर रूट ऑफ T बाई M. तो गैसियस मीडियम कंप्लीट हो गया मेरा. तो ये टी एंड एम क्या है? दिस इज द फिजिकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर पेंडुलम. अगर कोई भी एक पेंडुलम है विच इज जस्ट वाइब्रेटिंग विद अ टेंशन टी, देखो यहां पर एक पेंडुलम मैंने ड्रॉ किया वेयर इट इज वाइब्रेटिंग. अच्छा, पेंडुलम छोड़ो, पेंडुलम के बारे में नहीं कहूंगा. सबसे एक बहुत इजी एग्जांपल है, दिखा रहा हूं. गिटार तो तुम लोग जानते ही हो. सो वेन एवर यू विल प्ले द गिटार, तो व्हाट विल हैपन? द स्ट्रिंग ऑफ द गिटार विल वाइब्रेट लाइक दिस. ऊपर नीचे ऐसे होता है, बहुत स्लो मोशन में अगर देखोगे तो पता चल जाएगा. दिस विल एक्चुअली वाइब्रेट लाइक दिस. पहले ऊपर होता है फिर नीचे होता है. कोई भी स्ट्रिंग लेकर उसको बहुत जोर से टान कर अगर तुम ऐसे टान कर छोड़ दोगे तो क्या होगा? वो ऊपर नीचे ऐसे होता रहेगा. दैट इज द सेम थिंग. स्ट्रिंग लेकर भी वैसा कर सकते हो तुम लोग, इलास्टिक लेकर भी वैसा कर सकते हो. So this is the vibration where m is denoted by the mass of that string and t is the tension, जितनी जोर से तुम यहां से यहां तक खींच के रखे हो. The tension, nothing but the force, you can also say that. So this case is denoting that how much the tension will be that increasing the velocity or not. तो यहां पर clearly देख सकते हो कि जितना टेंशन इंक्रीज होगा उतना ही वेलोसिटी बढ़ेगा. सो V is directly proportional with the T. और एक चीज देखो, V is inversely proportional with the mass of the string. क्यों? जितना भारी स्ट्रिंग होगा उतना तो कम वाइब्रेट करेगा, मतलब वेलोसिटी भी कम होगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया यू कैन से दैट दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ द साउंड दैट मेकिंग बाय एनी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. और कोई भी एक स्ट्रिंग का बारे में भी जब जो वाइब्रेट करेगा उसके बारे में भी ये बोल सकते हो. सो दैट्स इट फॉर द वेलोसिटी एंड द मैथमेटिकल आइडिया अबाउट द वेलोसिटी. सो तुम लोगों का काम है अभी, पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, चलो क्या क्या आज हुआ. सो टुडे वी जस्ट लर्न अबाउट द mathematical expressions of velocity. Not only that, we just learn also how to express one wave in a graphical nature. उसके साथ ही दो चीज बहुत इंपॉर्टेंटली हम लोगों के पास आया, दैट इज द वेवलेंथ. एक कंप्लीट वेव का जो लेंथ होता है दैट इज वेवलेंथ, और रेस्ट पोजीशन से जितना ऊपर जाएगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन इज नोन एज द एम्पलीट्यूड. सो दैट्स इट. यही तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. होप यू विल प्रैक्टिस दिस ऑल, एंड कोई भी डाउट हुआ तो जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.